Students, today we will discuss about the matter and the various states of matter. So matter in the lower classes we have studied anything that occupy space and has mass and volume. कोई भी substance अगर space occupy करता है, it will have the mass and it will have the volume. That particular substance is said to be the matter. You can take any example. Suppose I'll take the example of a pen. Suppose this is a pen. Clear? So this pen, number one, if I'll put this pen on somewhere or anywhere in the universe or anywhere in the space, then it will occupy the space. Secondly, this pen will have the mass, so it will have the mass, and we can calculate its volume by calculating the volume of this part and this part. This is, you can say, the cylindrical part, then this you can say the conical part. So if I apply the formula for the calculation of volume of cylinder plus the volume of cone, तो हमें इस कंप्लीट की क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम मिल जाएगी. सो नेचर में कोई भी सब्सटेंस अगर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसमें मास है, वॉल्यूम है, देन दैट इज सेड टू बी द मैटर. सो इन टुडेज article we have to study about the classification of matters. Just see out. Classification of matter that we have to study. So this matter is broadly classified into the two states. Number one, I'll say that is low energy states of matter. Low energy states. Second, we are having the states having the high energy. These are said to be the high energy states of matter. So number one is low energy states of matter having the low energy, and the second one is high energy states of matter. So we have to study one by one. So low energy state को पहले study करते हैं. These are of two type. Number one, natural, which exist in the nature, and second is said to be the modern or man-made. Modern state, or I will say man-made states. Clear? So अगर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो हमें पहले स्टडी करनी है नेचुरल स्टेट्स, फिर हमें मॉडर्न स्टेट्स विच आर द टाइप ऑफ लो एनर्जी स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड देन वी हैव टू स्टडी द हाई एनर्जी स्टेट्स ऑफ मैटर. सो नेचुरल से स्टार्ट करते हैं कि जो नेचुरल स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसमें नंबर वन वी आर हैविंग सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट क्या होती है बेटा? द स्टेट विच हैज़ द फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो कोई भी स्टेट में जिसमें आपकी फिक्स शेप होगी, फिक्स वॉल्यूम होगी, जस्ट लाइक दिस पेन, दिस विल हैव द फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, दैट स्टेट इज सेड टू बी द सॉलिड स्टेट. स्टेट इन विच देर इज फिक्स्ड shape and volume. Clear to all of you? Second, liquid state. The liquid state has no fixed shape but has fixed volume. किसी भी स्टेट में शेप फिक्स नहीं होगी बट वॉल्यूम फिक्स होगी, दैट इज सेड टू बी द लिक्विड स्टेट. लिक्विड के बारे में आपने देखा होगा, अगर वाटर लिक्विड है, अगर आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे तो वॉट एवर बी द शेप ऑफ कंटेनर दैट विल बी द शेप ऑफ लिक्विड, बट उस लिक्विड को जो वॉल्यूम होती है फिक्स होती है. इफ आई से 1 लीटर वाटर देन वॉल्यूम इज ऑलवेज 1 लीटर, चाहे आप उसको किसी भी कंटेनर में डालो. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस कंटेनर में आप डालोगे लिक्विड की शेप वैसे ही हो जाएगी. देयरफॉर वी विल से दे हैव अ नो फिक्स शेप बट हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम. Now the third state. Third state is gaseous. Gaseous state. The state in which there is no fixed shape and no fixed volume. गैसेज में क्या होता है बेटा? गैसेज में जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव फ्रीली. ठीक है, तो अगर आप किसी गैस को 1 लीटर कंटेनर में डालोगे तो उसकी वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगी. अगर आप गैस को 2 लीटर कंटेनर में डालोगे तो उसकी वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो गैसेज में जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होती. ठीक है, और सेकेंडली नो फिक्स शेप
बिकॉज अगर आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे वही उसकी शेप होगी। अगर आप गैस को सिलेंड्रिकल वेसल में डालोगे इट विल बी सिलेंड्रिकल, कोनिकल वेसल में डालोगे इट विल बी कोनिकल। तो गैसेज में द थिंग यू हैव टू रिमेंबर देयर इज नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर? नाउ द फोर्थ स्टेट जो यहाँ पे स्टडी करनी है प्लाज्मा स्टेट है। So plasma state is nothing but it is a mixture of heavily charged particle, positive charged particle, negative charged particle moving with high kinetic energy. So अगर किसी भी मैटर में पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल हैं, नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल हैं एंड दे आर मूविंग विद हाई काइनेटिक एनर्जी देन दीज आर सेड टू बी द प्लाज्मा स्टेट। तो ये आपकी जो मैंने 4 स्टेट बताई लो एनर्जी स्टेट में, दीज आर द नेचुरल स्टेट्स। नाउ वी हैव टू स्टडी द मॉडर्न और मैन मेड स्टेट्स। सो लेट अस स्टार्ट। इसको भी बेटा ऐसे साइड में करते हैं, जस्ट सी आउट। सो नेचुरल स्टेट जो है वो हमने स्टडी करी, टोटल वी हैव स्टडीड द 4 स्टेट्स। नाउ इन मॉडर्न और मैन मेड स्टेट्स इसमें वी हैव टू स्टडी नंबर 1 इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। Bose-Einstein condensate. This state is achieved at -273 degrees Celsius and this temperature is said to be absolute zero temperature. First thing आपको पता होना चाहिए कि what is the meaning of absolute zero temperature? -273 degrees Celsius is said to be the absolute zero temperature. Clear to all of you? अब इस स्टेट में क्या होता है, इतने कम टेम्परेचर में what happens? Suppose these are the atoms. अब जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है और इस -273 डिग्री सेल्सियस पर वी विल एज्यूम दैट देयर इज जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो जीरो काइनेटिक एनर्जी की स्टेज में क्या होगा बेटा, और टेम्परेचर ध्यान कीजिए इट इज यू कैन से सुपर कूल्ड स्टेट। सो सुपर कूल्ड स्टेट में क्या है, दीज 3 एटम दे विल कंडेंस टू फॉर्म अ सुपर एटम। ये एटम आपस में कंडेंस होंगे, इकट्ठे होंगे एंड दे फॉर्म अ सुपर एटम। सो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस-आइंस्टीन स्टेट क्या होती है, सिंपली आई विल राइट दैट इट इज द सुपर कूल्ड स्टेट in which the atoms condensed to form a super atom. Clear to all of you? चलिए, सो ये हमने स्टडी किया फर्स्ट। नाउ द सेकेंड इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। वी हैव टू स्टडी वन बाय वन। सेकेंड इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, second state. So supercritical fluid, what happens, all of you know, at high temperature and pressure, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में। ये आपको सबको पता है। अगर आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, इट सिंपली एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर when the distinction between the gas and liquid disappear। आपके सामने एक स्टेट आएगी जब आप उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि वो स्टेट आपकी गैसियस स्टेट है या लिक्विड स्टेट है, मीन्स उनके बीच का डिस्टिंक्शन डिसअपियर होगा। दैट स्टेट इज सेड टू बी द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सो दिस इज द सेकेंड। नाउ द थर्ड वन इज excitation state। एक्साइटेशन स्टेट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक्साइटेशन स्टेट क्या होती है कि आप किसी भी सब्सटेंस को अगर एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो एनर्जी गेन करने के बाद वो जिस स्टेट में जाएगा हाई एनर्जी स्टेट में, दैट इज सेड टू बी द एक्साइटेशन स्टेट। इट इज द हाई एनर्जी स्टेट
achieved for short time when a substance gains the energy। जब कोई भी सब्सटेंस एनर्जी का गेन करता है तो बेसिकली उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टडी भी कर रखा है हमने, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो जो एक्साइटेड स्टेट है, इट इज अ हाई एनर्जी स्टेट विच एग्जिस्ट ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम। सो दिस इज द थर्ड स्टेट। नाउ द फोर्थ वन इज डीजेनरेट मैटर। नंबर 4 आई विल राइट डीजेनरेट मैटर। सपोज दिस इज अ मैटर। अगर इस मैटर पे हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करें, विल अप्लाई हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो जो स्टेट मेरे को मिलेगी वो क्या होगी, डीजेनरेट मैटर। बट इसमें ध्यान कीजिएगा जो मेजर फैक्टर है वो हाई प्रेशर है। हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और हाई प्रेशर की वजह से समटाइम टेम्परेचर भी रेज करता है। सो अगर हम बिल्कुल वन लाइन में अगर इसको डिफाइन करें तो वन लाइन में क्या होगा, जस्ट सी आउट। अगर आप किसी भी मैटर पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो जो स्टेट अचीव होगी डीजेनरेट मैटर, बट वहाँ पर टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली राइज करता है। तो इन सम पॉइंट्स इट इज़ आल्सो रिटन इट इज़ द स्टेट अचीव्ड व्हेन द मैटर इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बट अगर दोनों में डिस्टिंग्विश करना हो तो आपको बेटा प्रेशर को डिस्टिंग्विश करना है। यू हैव टू नोट डाउन द प्रेशर। सो डीजेनरेट मैटर इज द स्टेट व्हेन matter is subjected to high pressure, clear, which automatically you can say simply it also result in increase of temperature, that you have to remember. So degenerate matter जो है ये normally हमें बेटा stars में मिलता है, that you have to remember, clear। चलिए, now this is the fourth state। fifth state is superconductivity। सुपर कंडक्टिविटी। नो व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? आपको पता है बेटा किसी भी सब्सटेंस में जब करंट कैरी करता है, करंट फ्लो करता है, तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है इन द फ्लो ऑफ करंट। सो अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाए तो जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। सो दैट स्टेज इज सेड टू बी द सुपर कंडक्टिविटी। दैट इज आई विल से द स्टेट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। अगर किसी सब्सटेंस में रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होगा तो दैट सब्सटेंस, दैट स्टेट अचीव इज सेड टू बी द सुपर कंडक्टिविटी। और उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर। सो दिस इज रिगार्डिंग द फिफ्थ। नाउ द सिक्स्थ इज सुपर फ्लूइड। नाउ व्हाट इज सुपर फ्लूइड? जस्ट सी हैपन वी आर हैविंग द क्रायोजेनिक फ्लूइड्स और लिक्विड्स। क्रायोजेनिक लिक्विड, ठीक है, किसी भी क्रायोजेनिक लिक्विड में सपोज दिस इज अ क्रायोजेनिक लिक्विड। अगर आप, और ये लिक्विड नॉर्मली क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा इस तरह से। जब लिक्विड इस तरह से फ्लो करता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैक साइड में लगती है इस तरह से। ऑल ऑफ यू नो, अगर कोई भी सब्सटेंस लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बैक डायरेक्शन में लगेगी। सो वी आर हैविंग द क्रायोजेनिक फ्लूइड्स और लिक्विड। जब आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। बी क्लियर, ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स भी आप इसको कह सकते हो। सो क्रायोजेनिक लिक्विड में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या होगा, फ्रिक्शन उसका कम होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो एक पॉइंट आएगा जब वो मूव करेगा विदाउट फ्रिक्शन। अभी ये मूव कर रहा है विद फ्रिक्शन, दैट पर्टिकुलर स्टेज ये मूव करेगा विदाउट फ्रिक्शन। सो आई विल राइट क्रायोजेनिक लिक्विड्स व्हेन subjected to extremely high temperature flows without liquid। so that stage is said to be, जब एक लिक्विड मूव कर रहा है, ठीक है ना, विदाउट फ्रिक्शन वो मूव कर रहा है, दैट स्टेट इज सेड टू बी द सुपर फ्लूइड। क्लियर? नाउ वी हैव डन द सिक्स्थ स्टेज। नाउ द सेवंथ स्टेट इज सुपर सॉलिड।
तो सेम हम सुपर सॉलिड के भी लिए कहेंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेम हमें यहाँ पर कहना भी है सुपर सॉलिड के लिए भी, ठीक है ना। सम सॉलिड्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर मूव विथ जीरो रेजिस्टेंस, जीरो फ्रिक्शन। कोई भी ये आपका सॉलिड है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मूव इसे इस डायरेक्शन में करना है तो फ्रिक्शन इसका बैक डायरेक्शन में होगा। सो बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्रिक्शन इसका जीरो हो जाएगा। जब फ्रिक्शन जीरो होगा ये मूव करेगा, दैट इज सेड टू बी द सुपर सॉलिड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जीरो फ्रिक्शन का मतलब वी कैन राइट दैट इट इज मूविंग विदाउट फ्रिक्शन। क्लियर। चलिए नाउ द 8th one is time crystals। now what are time crystals, clear to all of you। देखो बेटा, नॉर्मली हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस मूव करता है हाई एनर्जी स्टेट में, बट वी आर हैविंग सब सब्सटेंस जो लो एनर्जी स्टेट में भी मूव करते हैं। तो कोई भी मैटर अगर लो एनर्जी स्टेट में मूव कर रहा है, दैट स्टेट इज सेड टू बी द टाइम क्रिस्टल। क्लियर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट move in low energy state, that state is said to be the time crystals। Clear to all of you। now the 9th one is John Taylor metal। John Taylor metal। so what is this state, John Taylor metal? Clear to all of you। we are having some solids which possess some properties of insulators। उनमें कुछ प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स की हैं, बट दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स। सो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको इंसुलेटर की मिलेगी, बट ओवरऑल वो बिहेव करेंगे कंडक्टर्स की तरह। दिस स्टेट इज सेड टू बी द जॉन टेलर मेटल। सो दिस वी हैव डन द 9 states। नाउ द 10th one। The 10th state is the Rydberg polyron। Rydberg polyron। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को कम करते हो तो एटम्स आपस में कंडेंस करते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि कंडेंस की बजाय व्हाट वी गेट दिस टाइप ऑफ स्टेट। दिस इज यू कैन से एटम 1, इसके अंदर ये एटम 2, इसके अंदर बेटा ये एटम 3। सो ऐसी जो स्टेट मिलेगी दैट इज सेड टू बी द रिडबर्ग पॉलीरॉन, जिसमें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे और एक्सट्रीमली कूल स्टेज में एटम के अंदर एटम हमें मिलता है। सो व्हाट विल आई राइट, आई सिंपली राइट एट एक्सट्रीमली अल्ट्रा कूल टेम्परेचर at extremely ultra cool temperature when the matter contains atoms inside atom। जब हमें एटम के अंदर एटम मिलना शुरू हो जाएंगे, दैट स्टेट इज सेड टू बी द रिडबर्ग पॉलीरॉन। नाउ द 11th state, this 11th state is said to be the stringent liquid। stringent liquid तो stringent liquid भी बोलते हैं अगर आप इसको वन वर्ड में बोलेंगे। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर। इसमें नॉर्मली क्या होता है, सपोज ये आपका लिक्विड है, इस लिक्विड में देयर इज अनस्टेबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और एटम्स की बात करें, अनस्टेबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लाइक लिक्विड, किसी लिक्विड की तरह। ठीक है। सो किसी भी लिक्विड में किसी भी सब्सटेंस में अगर आपको अनस्टेबल अरेंजमेंट मिले एटम्स का लाइक अ लिक्विड, बट देयर इज अ कंडीशन। ठीक है ना,
जो ओवरऑल पैटर्न है, द ओवरऑल पैटर्न इज, अब बात करते हैं ओवरऑल पैटर्न की, द ओवरऑल पैटर्न इज स्टिल consistent, that is not irregular and it will be like a solid. So बात करें कि अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो इरेगुलर है, बट ओवरऑल अगर स्टडी किया जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ कंसिस्टेंट अरेंजमेंट, ठीक है ना, कि जो अरेंजमेंट ओवरऑल है वो कंसिस्टेंट है, बट यहाँ पर जो है वो अनस्टेबल अरेंजमेंट है, और यू कैन से जो ओवरऑल आप इसको कहो तो वहाँ पे वो बिहेव करेगा लाइक अ सॉलिड, दैट स्टेट इज सेड टू बी द स्ट्रिंजेंट लिक्विड। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, लिक्विड में अनस्टेबल अरेंजमेंट ही होता है, बट कुछ लिक्विड में क्या है कि अनस्टेबल अरेंजमेंट तो है बट ओवरऑल दे विल बिहेव लाइक अ सॉलिड, सो दीज लिक्विड्स आर सेड टू बी द स्ट्रिंजेंट लिक्विड्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, नाउ वी आर हैविंग हैवी फर्मियन मटेरियल, 12th स्टेट, हैवी fermion material. So what is the meaning of heavy fermion material? It is simply a, you can say, state in which the material is having high correlated electrons. अगर किसी भी सिस्टम में बहुत ज़्यादा नंबर में आपके पास कोरिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द इलेक्ट्रॉन विच इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट स्टेज इज सेड टू बी द हैवी फर्मियन मटेरियल। नाउ द 13th इज बेटा, वी आर हैविंग द क्वांटम स्पिन लिक्विड, क्वांटम स्पिन लिक्विड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम स्पिन लिक्विड? इट इज सिंपली द state of interacting spins। जब इलेक्ट्रॉनिक स्पिन्स इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट इन द सेंस मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज हमारे पास 10 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो ये एक आपका ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दूसरा ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दिस इज डोमेन 1, दिस इज डोमेन 2। सो क्या होता है, जब हमारे पास काफ़ी हैवी नंबर में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तो इंटरेक्शन में वो क्या करेंगे, दे विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे डोमेन। सो यहाँ पर इन्होंने कैसे इंटरेक्ट किया, इन्होंने 2 डोमेन बनाए और दोनों डोमेन में जो थी वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या थी, सेम थी। अब ये अपनी स्पिन अपोजिट भी कर सकते हैं, सेकेंड इंटरेक्शन ऐसे मिल सकता है कि दिस वे, कि एक डोमेन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पिन वाइज है, सेकेंड में क्या हो गया क्लॉकवाइज, सेकेंड में एंटी क्लॉकवाइज। सो इस तरह के लिक्विड को हम पर्टिकुलरली या स्टेट को हम क्या कहेंगे, क्वांटम स्पिन लिक्विड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब आपके जो स्पिन्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं आपस में, दैट इंटरेक्टिव पॉइंट और इंटरेक्टिव स्टेज इज सेड टू बी द क्वांटम स्पिन लिक्विड। सो दिस इज द 13th। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द 14th, क्वासी पार्टिकल्स, 14th स्टेट। क्वासी पार्टिकल्स। सो व्हाट आर क्वासी पार्टिकल्स? समटाइम्स क्या होता है बेटा, जो डिस्टर्बेंस, सपोज हम किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस इन द सेंस देखिए, थोड़ा मैं क्लियर करूंगा। ये सपोज आपका लिक्विड है, आपने इस लिक्विड में एयर बबल को एंटर करा दिया, दिस इज एन एयर बबल। सो ये एयर बबल क्या है, डिस्टर्बेंस है। अब क्योंकि ये डिस्टर्बेंस इस मीडियम का पार्ट है तो दिस डिस्टर्बेंस विल आल्सो एक्ट एज मैटर। ये डिस्टर्बेंस भी कैसे काम करेगा, मैटर की तरह काम करेगा, या आप इसको बोल सकते हो इट विल एक्ट एज अ पार्टिकल। ठीक है। सो कभी भी किसी मीडियम में अगर हम डिस्टर्बेंस करते हैं और वो डिस्टर्बेंस भी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, दैट इज सेड टू बी द क्वासी पार्टिकल। अब इस एयर बबल को मैं क्या कहूँगा, दिस एयर बबल इज नाउ सेड टू बी द क्वासी पार्टिकल। ठीक है ना। आई विल से व्हेन द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम
विल एक्ट एज अ पार्टिकल। जब वो डिस्टर्बेंस भी कैसे काम करे, पार्टिकल की तरह काम करे, देन दैट पार्टिकल इज सेड टू बी द क्वासी पार्टिकल। क्लियर? सो दिस इज द 14th। नाउ इन दिस कैटेगरी द लास्ट वन इज 15th स्टेट। यहां पर मैं क्लियर करूं, वी आर हैविंग टोटल 15 स्टेट्स ऑफ मैटर इन द मॉडर्न और मैन मेड लो एनर्जी स्टेट। सो 15th इज अ क्वांटम ड्रॉपलेट, quantum droplet, or I will say dropleton. So what is the meaning of this? Simply, first of all मैं आपको क्लियर कर दूं, it was the first quasi particle. फर्स्ट क्वासी पार्टिकल मीन्स वो पार्टिकल जो वो डिस्टर्बेंस जो पार्टिकल की तरह बिहेव करे। सो इसमें होता क्या है, इट इज सिंपली व्हाट विल आई से, collection of electron and hole in semiconductors, collection of holes and electrons in semiconductors। ये बेटा कोई भी आपका सेमीकंडक्टर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नॉर्मली क्या है, दीज आर द डिस्टर्बेंसेस, बट दीज डिस्टर्बेंसेस, दीज इलेक्ट्रॉन एंड दीज होल्स, these also act as particles. So this is said to be the, you can say, quantum droplet or dropleton, and this was the first quasi particle. तो quasi particle क्लियर होना चाहिए क्या होता है, अगर किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस करते हैं, डिस्टर्बेंस मतलब कोई एक्सटीरियर बॉडी आप एंटर कराते हो और वो बॉडी भी काम करती है एज अ पार्टिकल, देन दैट्स बॉडी इज सेड टू बी द क्वासी पार्टिकल। सो अब तक हमने क्या किया, हमने लो एनर्जी स्टेट को कंप्लीट किया जिसमें 4 आपकी नेचुरल थी, 15 आपकी मॉडर्न और मैन मेड थी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हाई एनर्जी स्टेट। तो हाई एनर्जी स्टेट में वी आर हैविंग ओनली वन स्टेट ऑफ मैटर। इन हाई एनर्जी स्टेट के बारे में अगर डिस्कस करें, वी आर हैविंग ओनली वन स्टेट, एक ही स्टेट हमें यहां पे कर रही है, दैट इज क्वार्क ग्लूकोन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा तो हमें पता है, मैंने पहले आपको बताया था प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इट इज सिंपली यू कैन से द मिक्सचर ऑफ हैवीली चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी प्लाज्मा में क्या होगा, अगर आपके हाई चार्ज के पार्टिकल होंगे, हैवीली चार्ज के पार्टिकल, और मूव कर रहे हैं वो प्लाज्मा, बट यहां पर जो प्लाज्मा है वो किसका बना हुआ है, क्वार्क और ग्लूकोन का बना हुआ है। अब हमें स्टडी करना है कि वो प्लाज्मा, अगर नॉर्मली मैं कहूं व्हाट इज अ क्वार्क ग्लूकोन प्लाज्मा, इट इज अ प्लाज्मा विच इज मेड अप ऑफ क्वार्क एंड ग्लूकोन। सो यहाँ पे क्वार्क क्या होता है, क्वार्क इज द यू कैन से मिक्सचर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, nucleons and elementary particles. Simply I will say nucleons, all of you know, neutrons plus protons. क्लियर? सो क्वार्क हो गया आपका, बिल्कुल क्लियर है, न्यूक्लियॉन्स प्लस एलिमेंट्री पार्टिकल। और ग्लूकोन क्या होता है, ठीक है, ग्लूकोन सिंपली है, सपोज ये आपका वन क्वार्क पार्टिकल है, ये दूसरा क्वार्क, आई विल राइट क्यू से इंडिकेट करते हैं, और इन दोनों के बीच में दिस इज द फोर्स। क्लियर? दिस इज द फोर्स। तो इस फोर्स को जो कैरी करेगा, द पार्टिकल विच कैरी द फोर्स बिटवीन द क्वार्क, क्लियर, दीज आर सेड टू बी द ग्लूकोन, एंड दीज पार्टिकल बी रिमेंबर दीज आर मासलेस पार्टिकल्स, इनमें कोई मास नहीं होता। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर क्वार्क के बीच में फोर्स को कैरी करने वाले पार्टिकल जो फोर्स को कैरी करेंगे, मासलेस पार्टिकल है, दीज आर सेड टू बी द ग्लूकोन, और ये आपके क्वार्क के पार्टिकल है। तो ये जो पूरा आपका प्लाज्मा तैयार होगा, दिस इज सेड टू बी द क्वार्क ग्लूकोन प्लाज्मा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस वी हैव स्टडीड द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें थोड़ा सा लेआउट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है लो एनर्जी स्टेट में 4 आपकी नेचुरल है, 15 आपकी मॉडर्न या मैनमेड है, और हाई एनर्जी में एक स्टेट है हमारे पास। अब थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है, जो स्टूडेंट सिर्फ 11th और 12th स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको सिर्फ 5 स्टेट स्टडी करनी है। दे हैव टू स्टडी द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी? ये 4 नेचुरल में मैं लिख देता हूं यहां पर, दे हैव टू स्टडी ओनली द
लो एनर्जी स्टेट यहां पर मेंशन कर देते हैं, उनको बेटा लो एनर्जी स्टेट को स्टडी करना है। और लो एनर्जी स्टेट में कौन कौन सी मैं क्लियर कर दूं कि नेचुरल में दे हैव टू स्टडी सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। और बेटा मैन मेड में या मॉडर्न में दे हैव टू स्टडी बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। सो उनको टोटल 5 स्टेट स्टडी करनी है। लो एनर्जी में 4 नेचुरल, 1 या आपकी मॉडर्न स्टेट, और बाकी जो स्टेट है वो बच्चे स्टडी करें, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट्स ऑल।